afternoon, student. We started with chapter 1 CS paper 2 electronic component. We have seen classification, active passive components. What do you mean by active components? Passive components, example. Then passive component classified into three types: resistor, capacitor, inductor. Then symbol of resistor, unit of resistor, function. Then after that, type of resistor, fixed type, variable type. Okay, then we started with the carbon type. Again, carbon type, there are two type: carbon composition and carbon film. We have seen carbon composition wherein the resistors is represented by the color band and how to find their values, right? So still B. Roy of Great Britain had very good wife. Okay, then we have seen how to given the color band, how to find the value. Okay, we have done lot many examples, and after that we have seen given some homework also, right? So give the resistance and tolerance for the following resistance with the color strip. तो आपने किए होंगे ये सारे. Now let us go the other way round. Given the value to find the color code. Okay, so let us see. Now you are given 1 mega ohm the value. Now student, here you have to bifurcate this value in a such a way that you get the 3 band only. Okay, 3 ही बैंड आना चाहिए, ऐसे नहीं 1 मेगा ओम तो ब्राउन लिख दिया और 10⁻⁶ ब्लू लिख दिया, ऐसे नहीं. Whatever value may be given, you have to represent in 3 बैंड. ओके, कंपल्सरी. तो उसको आपको इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वी गेट. नाउ यहाँ पे कितना डिजिट से 8200, तो इसको हमको 3 कलर बैंड में ही रिप्रेजेंट करना है एंड वी शुड गेट दैट एग्जैक्ट दैट वैल्यू. तो कैसे करेंगे? सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट वन. ओके, 1 मेगा ओम. 1 मेगा ओम मतलब 1 इंटू 10⁻⁶ ओम. तो 1 इंटू 10 इंटू 10⁻⁵. अभी हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं सो दैट वी गेट द 3 कलर्स, राइट? सो 1, तो 1 10 एंड इधर क्या रह गया 10⁻⁵. अभी 10⁻⁶ को हमने बाइफरकेट किया 10 इंटू 10⁻⁵. तो 1 इंटू 10 10 10⁻⁵. अभी आ गया आपको 3 कलर. फर्स्ट वन ब्राउन, ब्लैक, 10⁻⁵ मतलब कौन सा? ग्रीन. So 1 mega ohm is brown, black and green. Understood? Next, second 3.3. 3.3 तो कैसे लिखेंगे हम? 3 into 3 into 10⁻⁻⁻1. 3 मतलब कौन सा है? Orange, orange. 10⁻⁻1 is gold. Got it? So this way you have to just rearrange the digits and get into in the 3 color band. Next example, carbon composition like this. Carbon composition resistor, इसकी speciality क्या है? Low cost color code system is used. The range 1 ohm से कितने तक available है? 20 mega ohm. Tolerance is maximum tolerance कितना है? ±20%. And weightage power rating कितना है? 1/8. So this is a speciality of carbon composition resistor. Now next, carbon film type. Film resistor. In this type of thin film of carbon is deposited. You can see here the thin film of carbon is deposited on a insulating material like ceramic rod. तो यहाँ पे फिल्म लिए और सिरामिक रॉड पे उसको डिपॉजिट किया है. During the deposition, the value of the resistor is adjusted by the length and the width. Okay, उसका लेंथ और विथ से उसका वैल्यू डिसाइड किया जाता है ऑफ द कार्बन फिल्म रिबन. ठीक है. नाउ टाइप, they are also called as precision type resistor. Why they are very precise, their tolerance is very less, so they are called as precision type resistor. Okay, now let's just see the next type, wire wound type. Wire wound they are used, कहाँ पे यूज होता है ये? हाई करंट कंट्रोल. जहाँ पे हाई करंट कंट्रोल करना है, स्टेबिलिटी
accurate value of resistance is required, mainly high current control, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा करंट कंट्रोल करना है वहाँ पे आप ये वायर बाउंड टाइप रेजिस्टर यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ दे आर मैन्युफैक्चर. Wire wound resistor is manufactured by wrapping a length of special resistive wire. So क्या किया, एक रॉड पे, सिरामिक रॉड पे, ये इस पे निकॉम वायर और मैग्नीशियम वायर इज राउंडेड ऑन अ इंसुलेटिंग कोर ऑफ सिरामिक. तो सिरामिक रॉड पे उसको वाउंड किया जाता है एंड द एंड्स आर अटैच. तो एंड्स कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है. द एंड्स आर अटैच टू द मेटल कॉन्टैक्ट. ओके, we which are inserted in the core and then it is coated with the enamel coating. So इस पर coating किया जाता है. So these are used, wire wound type are used in your high current handling. जहाँ पे ज़्यादा current handling है, higher current handling है, वहाँ पे हम wire wound type resistor use करते. You will be using in the physics lab. Okay. Now let us see the comparison of कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एंड वायर बाउंड टाइप. कार्बन कंपोजिशन में मैन्युफैक्चर कैसे होता है, बाय यूजिंग कार्बन ग्रैन्यूल्स. द रेजिस्टिव वायर लाइक निकॉम इज यूज्ड. टॉलरेंस कितना है, टॉलरेंस इज 20%. यहाँ पे वेरी टॉलरेंस इज वेरी लेस, दे आर मोर प्रिसाइज टाइप. वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ये वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल है. दे आर अवेलेबल इन लो वैल्यू ओनली. Low power rating, high power rating. Color code system is used, no color code system is used. Small in size and low cost. Big in size and high cost. So you should know the distinguish between carbon composition resistor and wire wound type. Okay. Now let us move on to the next, that is the next passive component, capacitor. Capacitor is a passive component. It is also known as condenser. What is the purpose of this? It stores the electrical energy. कैसे? By charging. To deliver this energy by discharging. First it stores the energy, उसको क्या बोलेंगे हम, charging. और वो जब energy देता है, when it gives that is called by discharging. Charging and discharging. It stores the energy by charging and it gives the energy, that is called as discharging. It has a capacity of storing the charge across hence the name capacitor. Clear? Now the unit of capacitor is farad, but farad is the higher unit. They are expressed in lower unit, that is 10 raised to minus 12, or microfarad, that is 10 raised to minus 6 farad. So 1 picofarad is equals to how much farad? 1 picofarad is equals to 10 raised to minus 12 farad. Okay. Here symbol are given. ये fixed type है, दो ही terminal है, but there are two type, polarized and non-polarized. इसको polarity है क्या? नहीं. अलग है क्या? नहीं. So they are called as non-polar. क्या बोलते हैं इसको? Non-polar. ये polarized है. देखो इसका shape भी positive, negative. Polar capacitor. And this is variable. तीन terminal है, दो fixed है और एक variable. So these are fixed capacitor, polarized capacitor, variable capacitor, or we can say non-polar and polar capacitor. Okay. So fixed and variable. So capacitor, देखो ये पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है आपका नॉन पोलर. ये कैपेसिटर पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड है, इसको पोलैरिटी है. देखो ये एक ही कलर में, ईयर ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे दो कलर में आपको दिख रहा है, एक डार्क और एक ये लाइट कलर. सो इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. वेरिएबल है, वेरिएबल को कितने टर्मिनल होते हैं, एक, दो एंड तीन टर्मिनल होते. ये भी छोटा सा ट्रिमर कैपेसिटर है, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल, इसको भी तीन टर्मिनल है. एंड बाय एडजस्टिंग स्क्रू ड्राइवर से आप यहाँ से उसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, वेरिएबल की. सो अगेन कैपेसिटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू, फिक्स टाइप एंड वेरिएबल टाइप. नाउ लेट अस सी हाउ दिस कैपेसिटर इज मैन्युफैक्चर्ड. सो कैपेसिटर आप यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट. यहाँ पे एक प्लेट है, कंडक्टिंग मीन्स मेड अप ऑफ गुड
metal, okay. Electricity, good conductor of electricity. So capacitor consists of two parallel conducting plate separated by this material. This is called as dielectric material. ये क्या हो सकता है मटेरियल? द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी इंसुलेटिंग मटेरियल है दो प्लेट के बीच, बिकॉज दो बोथ द प्लेट्स आर कंडक्टिंग प्लेट. सो द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कैन बी माइका, पेपर, सिरामिक. यहाँ पे भी दिख रहा है दो प्लेटें, एक बाहर और एक अंदर प्लेट है, और बीच में क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर दिखाया गया है. ठीक है. नाउ लेट अस सी, यहाँ पे एक्शन, दो पैरेलल प्लेट है और इसमें बहुत सारे चार्जेस है. जैसे ही हम बैटरी को लगाते तो ये चार्जेस का क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और एक प्लेट पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक प्लेट पे क्या आ जाता है? नेगेटिव प्लेट. सी, यू कैन सी नाउ पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स इट एक्ट्स एज अ सेल. तो कैपेसिटर क्या हो जाता है? सेल. दिस इज अ चार्जिंग एक्शन. नाउ time constant. Time constant, the time constant, the RC time constant is a time taken by the capacitor to get charged. कब तक? अप टू 63.28% ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. जितना अप्लाइड वोल्टेज आपने दिया है उसका 63 पॉइंट हमने देखा है. देखो यहाँ पे दिया है ना हमने, ओके. यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इट विल चार्ज अप टू 9 इंटू 63 पॉइंट इतने तक भी चार्ज होगा. इट विल नॉट चार्ज अप टू द 9 वोल्ट, बट उससे थोड़ा कम ही चार्ज होगा, राइट. दैट इज टाइम कांस्टेंट, डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज. अगर 10 वोल्ट दिया है तो कितना वोल्ट तक चार्ज करेगा? ये 6.32 वोल्ट तक चार्ज करेगा. और इट कैन बी डिफाइंड एज आरसी टाइम कांस्टेंट. कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? इट इज़ अ टाइम टेकर, इट इज़ अ टाइम विच द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज अप टू. डिस्चार्ज भी कम्प्लीटली नहीं होता है, अप टू 36.72% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. सो यू शुड नो आरसी टाइम कांस्टेंट. चार्जिंग, it charges up to how much? 63.28% of the applied voltage, and discharge कितना तक होता है? 36.72% of the initial value voltage. Formula क्या है? T is equals to R into C, where R is resistance and C is the capacitance. So let us see the problem based on this formula. Okay. If a capacitor of 5 माइक्रोफैरेड, देखो यहाँ पे क्या दिया है? 5 माइक्रोफैरेड. एक्चुअल में यूनिट क्या है? फैरेड. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोफैरेड थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मच? 2 मेगा ओम थ्रू अ 10 वोल्ट बैटरी. देन फाइंड द टाइम कांस्टेंट. तो टाइम कांस्टेंट निकालना है. तो सॉल्यूशन गिवन, सी कितना दिया है? 5 माइक्रोफैरेड. आई सेड farad is a proper unit, but the capacitor are expressed in lower unit, that is pico, micro, nano. सो 10⁵ माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैरेड में. तो 5 इंटू 10⁻², यहाँ पे क्या आएगा? -6, नॉट 10⁻⁶, बट इट इज -6. ओके, -6 फैरेड. तो कितना हो गया? आर क्या दिया है? 2 मेगा ओम. तो क्या आएगा? 2 इंटू 10⁻⁶ ओम्स, राइट. 10⁻⁶. नाउ फॉर्मूला T is equals to R. सो R कितना है? 2 इंटू 10⁻⁶ एंड 5 into 10⁻⁻6, plus 6 minus 6 get cancelled. 2 into 5 is 10 seconds. तो क्या आया? टाइम कांस्टेंट कितना आया? 10 seconds. वेरी इजी, बट कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट. डायरेक्टली लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. First you have to convert into the proper unit and then apply the formula and get the value. टाइम कांस्टेंट है इसलिए उसका यूनिट क्या है? सेकेंड. तो यूनिट लिखाना बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट, आरसी टाइम कांस्टेंट. फाइंड आरसी टाइम कांस्टेंट. आपको अगेन सी दिया है 100 माइक्रोफैरेड एंड आर दिया है 100 किलो ओम. सो लेट अस सी. गिवन सी इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोफैरेड. अगेन आपको फैरेड में कन्वर्ट करना है, तो 100 इंटू कितना आएगा? 10⁻², यहाँ पे क्या आएगा? -6. ओके, प्रिंट ये टाइपिंग मिस्टेक है. -6 फैरेड. सो 100 किलो ओम, तो कितना आएगा? 100 इंटू 10⁻³ ओम्स. नाउ फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला? T इज इक्वल्स टू R इंटू सी. तो R किया, C किया, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, लेट अस सी. तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴,
राइट। ये 4 हो गया, 10⁻³ एंड 10⁻⁻7 माइनस 6 कितना होता है 10। अगेन t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पे क्या आया 10⁻7 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या आया 7 माइनस 6 इज 10, 10⁻1 इज 10। So this, now find r if t is equals to 10 milliseconds and c is equals to 0.1 microseconds। तो देखते हैं सॉल्यूशन। c दिया है आपको, कितना दिया है 0.1 माइक्रोफैरेड, तो कितना आ जाएगा 10⁻6 है ना, 0.1 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा 0.1 मतलब क्या होता है 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना हुआ इक्वल्स टू 10⁻⁻1 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7। ठीक है, आ गया 10 यहाँ पे क्या चाहिए -7। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, t कितना दिया है 10 मिली सेकेंड, अगेन मिली हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड, सो क्या आएगा 10⁻⁻³ seconds। So let us see t is equals to rc, तो r क्या आएगा t by c, तो 10⁻³ अपॉन माइनस 10 इंटू 10⁻3, यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है 10 इंटू 10⁻3 और इधर 10⁻⁻7, तो कितना आएगा इधर हो जाएगा 10⁻⁻2, सो इट विल बी 10⁻⁻2 और ये ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा 10⁻7, तो कितना हो जाएगा 10⁻5, 10⁻5 ओहम। ओके, और यू कैन राइट इज एज 100 किलो, मिस्टेक है यहाँ पे स्टूडेंट, सो रेक्टिफाई द मिस्टेक, सो इट विल बी 100 किलो ओहम। गॉट इट, प्रॉपर कन्वर्शन करना है। नाउ लेट अस सी द capacitor in series. Capacitor in series, like connected, the capacitors are connected one after the another, is called capacitor in series. Okay, so C1 plus C2 plus C3, there are three capacitor connected in series. तो इसका formula क्या है, how will find the equivalent, 1 upon C1 is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, that is equivalent capacitor connected in series. Okay, if n number of capacitors are connected in series, I will write the equivalent, 1 upon C equivalent is equals to 1 upon C1 plus C2 up to 1 upon Cn। क्लियर है, उल्टा है, रेजिस्टेंस में पैरेलल में ये फॉर्मूला है और सीरीज में ऐड होता है, राइट। So you have to remember this, capacitor in series, that is 1 upon C equivalent 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 आएगा। कैपेसिटेंस इन पैरेलल में क्या आएगा, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इजी है, पैरेलल में C1 plus C2, अंडरस्टूड। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, C टोटल इज इक्वल्स टू C1 plus C2 अप टू Cn। तो ये इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे, सो यू शुड नो द फॉर्मूला कि कब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दे जस्ट गेट एडेड अप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ प्रॉब्लम्स, two capacitor 20 microfarad and 30 microfarad are connected in series and then they are connected in parallel, तो if then the effective capacitor in each case, मतलब each case मतलब when they are connected in series तो equivalent कितना होगा and when they are connected in parallel तो कितना होगा। So let us see solution C1, now here we will not convert it, जो आंसर आएगा वो किस में होगा, माइक्रो फैरेड में, बिकॉज आपके पास कैपेसिटर है और दोनों भी माइक्रो फैरेड में दिया है, तो वी विल कीप इट, वी विल नॉट कन्वर्ट इनटू फैरेड, राइट। सो C2 भी दिया है 30 माइक्रो फैरेड, नाउ connected in capacitor connected in series, 1 upon Cs is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2, so 1 upon Cs क्या होगा C1 into C2 upon 1 plus C1 upon C2, so C1 कितना आया 12 माइक्रो फैरेड, राइट। करके दिखाओ, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा भी कर सकते हो आप, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30, ओके, ऐसा कर सकते हो। तो LCM कितना आया 60, राइट 60, तो यहाँ पे कितना आया 3 और यहाँ पे कितना आया 2, तो इट इज़ 5 अपॉन 60, उसको उल्टा करो
तो लेफ्ट हैंड साइड भी उल्टा हो, तो सी एस क्या हो जाएगा 60/5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 12 microfarad. Okay, this way also you can do. Okay, 12 microfarad. Then capacitor connected in parallel. Parallel मतलब C1 plus C2, तो 20 plus 30 कितना होता है 50 microfarad. ठीक है, 50 microfarad. Okay, next. Find the total capacitance if two capacitor 20 microfarad and 5 microfarad are connected in series. Then they are connected in parallel. The effective capacitance in each case. तो अभी वही दिया है, फाइंड द टोटल, तो फटाफट से करो. C1 दिया है, ओके, ऐड करो, तो सेम फार्मूला 1/20, सो क्या आएगा 4, राइट. ओके, 4 आया. ऐड करो, 20 + 5 कितना हो जाता है 25 माइक्रोफैरेड पैरेलल में, और सीरीज में कितना आता है 4 माइक्रोफैरेड. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/20 + 1/5. तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20. ओके, तो 1 + 4, राइट, 1 + 4, तो कितना हो जाएगा 5/20. तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4. तो दोनों को रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल बी 4. ओके, इट विल बी 4. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे टोटल कैपेसिटर्स फाइंड किए. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, which capacitors is required to connect in series with 12 farad to get an equivalent of 4 farad. अभी आपको एक कैपेसिटर फाइंड करना, इक्विवेलेंट दिया है, और कंडीशन क्या बोलिए, when they are connected in series. okay, connected in series. C1 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 is equals to C1 is equals to 20 farad and C2 is equals to 4 farad. तो इक्विवेलेंट कनेक्टेड इन सीरीज में क्या होता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2. 1/CS इज इक्वल्स टू, अभी C2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/CS माइनस 1 ये यहाँ पे जाएगा, 1/C2 किधर गया, यहाँ पे गया, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे करके 6 माइक्रोफैरेड. आई थिंक यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो आप ये कर सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कनेक्टेड इन सीरीज, राइट. तो वैसे ही 3 कैपेसिटर्स दिए हैं आपको, दे आर गिवन सेम वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या है सेम. सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यू कैन फाइंड द वैल्यू. व्हाट इज द आंसर कम 4 microfarad and 36 microfarad. So here we end the session for today. Okay, student.